अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وقال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1442 کے اسلامی سال کا عظیم القدر مہینہ اللہ عز و جل کی طرف جس مہینے کی نسبت کی گئی شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ وہ رمضان کا مہینہ آج اس کی 10 تاریخ ہے، یعنی پہلا عشرہ رحمت آج پورا ہو جائے گا مغرب تک۔ آئندہ کل سے مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ ابھی رمضان داخل ہوا تھا، اس کے 10 دن پورے بھی ہو گئے اور مساجد میں 3 پارے کی ترتیب سے 10 دن میں قرآن ختم بھی ہو گیا۔ اور رمضان المبارک کے مخصوص اعمال میں سے تراویح، روزہ یعنی تراویح میں قرآن کا سننا، اسی لیے قرآن کریم کے فضائل مسائل احکام، تراویح کے فضائل مسائل احکام، روزے کے فضائل مسائل احکام، اس پر اگلی جمعوں میں بات ہو چکی۔ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا حساب رمضان میں کیا کرتے ہیں۔ رمضان میں زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق نہیں ہے، یعنی رمضان کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو ایسا نہیں ہے۔ روزہ رمضان کی وجہ سے فرض ہے، لیکن زکوٰۃ رمضان کی وجہ سے فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ نصاب پر سال ختم ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کے برابر ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہم زیادہ ثواب کو حاصل کرنے کی غرض سے رمضان المبارک میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے
زکات کی لغوی اصطلاحی تعریف، زکات کی فرضیت اس امت پر اور امم سابقہ پر زکات کی فرضیت کب ہوئی، زکات کس مال پر ہے، زکات کن لوگوں کو ادا کرنی پڑے گی اور زکات کن پر خرچ کی جائے گی، چند ضروری باتیں زیادہ طور پر مسائل کی بحث آج کی مجلس کے اندر ذکر کر دیں گے۔ زکات کا لغوی ترجمہ صفائی، ستھرائی، بڑھوتری، نمو۔ زکات کا لغوی ترجمہ پاکی، صفائی، ستھرائی، بڑھوتری اور نمو۔ کیا مطلب؟ جس مال کی زکات ادا کر دی یہ مال صاف ہو گیا، جس مال کی زکات ادا کر دی یہ مال پاک ہو گیا، جس مال کی زکات ادا کر دی وہ مال بڑھنے کے قابل ہو گیا، جس مال کی زکات ادا کر دی وہ مال ہلاکت سے محفوظ ہو گیا۔ یہ تو ڈکشنری میں لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ شریعت کی بول چال میں ایک نصاب معین پر جب مقررہ وقت گزر جائے تو کسی مستحق کے زکات کو اللہ کی خوشنودی کے خاطر اپنے مال کا 40واں حصہ سالانہ ادا کر دینا، اس کو شریعت کی بول چال میں زکات کہتے ہیں۔ نصاب معین سونا ہے، صرف روکڑ رقم 100 روپے بھی نہیں، 5 تولہ چاندی بھی نہیں، تو 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، صرف سونا ہے۔ سونا مستقل مال ہے، چاندی مستقل مال ہے، روکڑ رقم مستقل مال ہے، ویپار کا سامان مستقل مال ہے۔ الگ الگ 4 مال ہو گئے۔ یہاں جانوروں کے رکھنے کا رواج نہیں اور جانور سائمہ نہیں ہے جو سرکاری چراگاہوں میں چرتے ہو، سرکاری پربوں سے پیتے ہو، اور بہت بڑا مال جو ہے جانوروں کا ریوڑ رکھنے والے ہمارے میں رہے نہیں، ورنہ جانوروں پر بھی زکات ہے۔ تو سونا ہے، چاندی ہے، روکڑ رقم ہے، ویپار کا مال ہے۔ نصاب معین پر مقررہ وقت سال گزر گیا، صاحب نصاب شخص اپنے مال کی زکات کا 40واں حصہ ادا کرے گا۔ 39 حصے اپنے پاس، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپے اپنے مال کا ایک حصہ نصاب معین پر ایک مقررہ مدت گزرنے پر ایک متعینہ مقدار اللہ کی خوشنودی کے لیے مستحق کے زکات کو دے دینا، احسان جتلانے کے لیے نہیں اور ان سے کسی نفع کی توقع کے بغیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دینا، اس کو شریعت کی بول چال میں زکات کہتے ہیں۔ زکات ادا کرنے کے بے شمار فوائد اور فضائل ہیں۔ 158 آیتوں میں تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا اور زکات ادا کرنے کا وارد ہوا ہے قرآن میں۔ 118 آیتوں میں الگ الگ مقامات پر اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کو پابندی سے ادا کرو، زکات ادا کرو، اس کا تاکیدی حکم آیا۔ زکات اگلی شریعتوں میں بھی تھی، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے تذکیرے میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کا جہاں قرآن میں ایک مقام پر تذکیرہ ہے، وہاں یوں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان جماعتی انبیاء کی طرف وہی بھیجی تھی، أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، بھلے کام کرنے کی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو پابندی سے ادا کرنے کی اور زکات ادا کرنے کی۔ حضرت اسماعیل کے تذکیرے میں ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دیتے تھے۔ شریعت محمدی میں زکات کب آئی؟ تو زکات میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے سخاوت اور فیاضی، دوسرے نمبر میں صدقہ،
खैरात, अतियात और तीसरे नंबर पर ज़कात है। क्या मतलब? कोई भी आदमी निसाब का मालिक हुए बगैर अल्लाह के दिए हुए माल में से, मसलन आज किसी भी तरह उसके पास 1000 रुपया है, उसमें से 100 रुपया दे दिए, ये है सखावत। तो कोई निसाब की कैद नहीं, अल्लाह ने दिया और दे दिए, पैदावार हुई, उसकी मुस्तकिल ज़कात है। इसको बेच करके माल आया, आदमी ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने अपने फजल से दिए, चलो इसमें से सखावत कर देते हैं। सखी आदमी अल्लाह के करीब, सखी आदमी जन्नत के करीब, सखी आदमी लोगों के करीब, सखी आदमी जहन्नम से दूर। बखील आदमी अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से दूर और जहन्नम से करीब। दूसरा सदका है, असदकतु तदफउ मीततस्सु, सदका बुरी मौत से बचाता है, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है, सदका बुराइयों के 70 दरवाजे बंद कर देता है, सदका जहन्नम के आग से छुड़ा लेता है। हर दिन एक फरिश्ता उतरता है, 2 फरिश्ते, एक कहता है ए अल्लाह खर्च करने वाले के माल में बरकत पैदा कर, दूसरा कहता है ए अल्लाह रोक कर रखने वाले के माल को बर्बाद कर। ये 1 रुपये से भी हो सकता है, 2-5 रुपये से भी हो सकता है। किसी को खाना खिला दिया भूखे को, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी जरूरतमंद को कपड़ा पहना दिया, उसके बेशुमार फवाइद और फजाइल है। लेकिन ज़कात एक फर्ज चीज है, एक इबादत है, उसके ज़ाब्ते और उसूल है। सखावत, फैयाजी और सदक़ात नाफिला आदमी जितना चाहे दे खैरात करे, लेकिन ज़कात शरीयत के अंदर हुदूद और कुयूद के दायरे में है। ज़कात अदा करने से बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आदमी के दिल से बुग़्ल खत्म हो जाता है, आदमी के दिल में सखावत का दाइया पैदा होता है, आदमी के दिल में सदक़ात का दाइया पैदा होता है। ज़कात अदा करने से गरीबों के हक की रियायत होती है, ज़कात अदा करने से गरीबों की दुआओं में हिस्सा मिलता है। ज़कात अदा न करके आका ने देखा एक कौम को मेराज में आगे पीछे धज्जियां लटक रही है और ये जहन्नम का ज़क्कूम खाते हैं और जहन्नम के अंगारे मुंह में भर रहे हैं। आका ने पूछा ये लोग कौन हैं? कहा ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते थे। कुरान में है वल्लदीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा, जो लोग माल को जमा करते हैं, कंस उस माल को कहते हैं, खजाना उस माल को कहा जाता है जिसकी ज़कात अदा न की हो। वल्लदीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा, सोना जमा करके रखते हैं, चांदी जमा करके रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ए नबी जी दर्दनाक अजाब की खबर दे दो। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, ये माल जहन्नम में तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, इसके लोखंड की प्लेटें बनाई जाएगी। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, पेशानी को दागा जाएगा, व जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, और पहलू को दागा जाएगा, व ज़ुहूरुहुम, और पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू बिमा कुन्तुम तकनिज़ून, लो ये माल जमा करने की सजा चखो। दूसरी जगह है हदीस में, ये माल गंजे सांप की शक्ल अल्लाह बना देंगे और कहेगा वो माल अना मालुका अना कंजुका, वो गंजा सांप कहेगा मैं ही तेरा माल हूं, मैं ही तेरा खजाना हूं। ज़कात मालिक निसाब पर फर्ज है। मालिक निसाब कौन है? सोना है तो 7.5 तोला, चांदी है 52.5 तोला, रोकड़ रकम है 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, इतना माल व्यापार का माल है 52.5 तोला चांदी के मिकदार। लेकिन अगर किसी के पास माल के 4 निसाब में से 1 तोला सोना है,
25 तोला चांदी है, 5,000 रुपये है, थोड़ा 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 है, सबको जमा कर लो। जिस दिन से माल आना शुरू हुआ तब से लेकर साल के खत्म तक हमारे पास बैलेंस है या आता जाता रहता है, लेकिन माल बचता है 52.5 तोला चांदी की मिकदार। तो अब हम मालदार हो गए, अब हम साहिब निसाब हो गए। जब से हमारे पास माल आया, मसलन बच्चा है, उसका पैसा जमा होता है, अब ये जवान हुआ, जवानी के दिन पहली तारीख को उसके पास 50,000 रुपये थे, अब ये मालदार हो गया। माँ बाप के साथ रहता है, वो इस्तेमाल नहीं करेगा, अब साल के खत्म तक 50,000 रुपये उसके पास पड़े भी रहे, तो ये माल है उसका। जब मालदार हो गया, अब ये बालिग होने की वजह से, तो इसको अपने माल की ज़कात निकालनी पड़ेगी। जो मालदार है उसको अपने माल का हिसाब भी करना है, और अपने माल का हिसाब करके अपने माल में ज़कात की अदायगी की नीयत करनी है, और नीयत करके ज़कात अदा करनी है। मसला साफ समझो, मालिक निसाब सिर्फ सोना रखता है, सिर्फ चांदी रखता है, सिर्फ रोकड़ रकम है, सिर्फ व्यापार का माल है, तो ये बताया। लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में है, तो फिर 52.5 तोला चांदी की मिकदार आ जाता है, ये आदमी मालदार हो गया। ये ज़कात ले नहीं सकता है, वो अपने माल की ज़कात अदा करेगा। ज़कात की अदायगी कमरी हिसाब से वाजिब होती है, यानी चांद के हिसाब से। जैसे अभी हमने रोजा रखा, बुधवार से शुरू किया, मंगलवार से शुरू नहीं किया। तकवीम में मंगलवार रमजान थी, लेकिन चांद बुधवार को हुआ, समझे? तो चांद के हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी, कमरी हिसाब से। इसलिए कि कमरी हिसाब से 354 दिन का साल होता है, और सूर्य के हिसाब से 365 दिन का साल होता है। चांद के हिसाब से 354 दिन का एक वर्ष होता है, और सूरज के हिसाब से, शमसी हिसाब से 365 दिन का साल होता है। लिहाजा ज़कात कमरी हिसाब से। अब हमें अंदाजा करना पड़ेगा, एक साल की तारीख मुतय्यन हो गई कि पहली रमजान, तो पहली रमजान से ज़कात शुरू, 10 रमजान, 10 रमजान से अदायगी शुरू, 15 रमजान को अदा किए, 15 रमजान से अदायगी शुरू। बाद लोग अभी मालदार होने में, यानी माल की अदायगी में महीना 2 महीना की देर है, लेकिन रमजान में फिक्स कर देते हैं, तो फिर भले 2 महीने की देर हो, लेकिन एक रमजान में फिक्स तारीख हो गई, उसी फिक्स तारीख से उसको ज़कात की अदायगी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, इतनी गुंजाइश है, रमजान भर तक अदा करते रहो, महीने भर तक, बकरा ईद तक अदा करते रहो, लेकिन इतनी ज्यादा ताखीर मत करो कि फरीजा जिम्मे में बाकी रह जाए। तो निसाबे मुअय्यन पर मुकर्रमा मुद्दत साल गुजर गया, मालिकी निसाब मालदार पर अपने माल का 40वां हिस्सा अल्लाह की खुशनुदी के लिए दे देना, इसको शरीयत की बोलचाल में ज़कात कहते हैं। ज़कात कमरी हिसाब से वाजिब होती है। ज़कात किनको दी जाएगी, ज़कात किनको नहीं दी जाएगी? अपने उसूल फुरू, इनको ज़कात नहीं दे सकते। उसूल फुरू से क्या मुराद? औलाद माँ बाप को, माँ बाप औलाद को, पोते पोतियां दादा दादी को, दादा दादे पोते पोतियों को, नाना नानी नवासे नवासियों को, नवासे नवासियां नाना नानी को ज़कात नहीं दे सकते। इनको अपने उसूल फुरू कहते हैं, जिनसे हम दुनिया में आए और हमसे जो दुनिया में आए, इनको ज़कात नहीं दे सकते। सैयद बनो हाशिम, इनको ज़कात नहीं दे सकते। क्यों? ज़कात मेल है, हमको तो मेल दिखता नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़कात ये माल का मेल है, जो माल के साथ है। मिसाल दी, शेरडी होती है गन्ना, इसमें मेल है। अब शेरडी के साठे को देखो तो इसमें मेल बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन चिचोड़ा चलता हो वहां देखो, ये साठों में से रस जाता है चिचोड़े में, और फिर वो गर्म होता है,
تو اس کو دیکھ لے اگر تو کوئی اچھا شریف آدمی گڑ نہیں کھائے گا. اس میں کتنا خطرناک جھانک اور میل ہوتا ہے, اس کو نکالنا پڑتا ہے. پھر دوسرے توے میں جاتا ہے, پھر تیسرے توے میں, پھر چوتھے توے میں گڑ کی شکل بنتی ہے اور اس کا میل نکالا جاتا ہے. جب یہ پیور گڑ ہو کر کے مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی قیمت بنتی ہے. ٹھیک اسی طرح ہمارے مال میں بھی گنے کی طرح میل ہے, جس کو پیغمبر کی آنکھ نے دیکھا ہے اور پیغمبر کی زبان نے بیان کیا ہے, اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے. مال کا میل ہے, اس لیے سید بنو ہاشم کو زکات نہیں دے سکتے. ایک مرتبہ حسنین کریمین میں سے حسن یا حسین نے کسی نے صدقہ کی کھجور اٹھا لی اور منہ میں رکھ دی. آقا نے فرمایا کخ کخ نکال اس کو, اور انگلی ڈال کر کے نکالا اور فرمایا ہم بنو ہاشم کے لیے زکات کا مال حلال نہیں ہے, صدقے کا مال حلال نہیں ہے, لہذا ان کو زکات نہ دی جائے. بھائی بہن کو, بہن بھائی کو, چچا بھتیجے کو, بھتیجا چچا کو, ماموں بھانجے کو, بھانجا ماموں کو, خالہ پھوپھیاں آپس میں ایک دوسرے کو زکات دے سکتے ہیں, اس میں کوئی واندہ نہیں. اپنی بہن غریب ہے, ان کو زکات دے. شرط یہ ہے کہ اس کے پاس داگینے نہ ہو, شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے نہ ہو. مالدار کو زکات کی ادائیگی میں دو چیزیں فرض ہے. جس کو میں زکات دے رہا ہوں وہ زکات کا حقدار ہے کہ نہیں, یہ تحقیق فرض ہے. کسی نے بغیر تحقیق کے دے دیے, بعد میں پتا چلا کہ یہ حقدار نہیں تھا, تو دوسری مرتبہ زکات ادا کرنا فرض ہے. وہ پہلی ادا نہیں ہوئی. یاد رکھو, ابھی ہم روزے سے سو گئے, پتہ نہیں چلا, اور جب آنکھ کھلی تو 5 بج گئے تھے, اور آدمی کہے چلو میں ظہر پڑھ لوں تو نماز ہوگی. کوئی سو گیا جمعہ کے بعد اور تو پڑھنے کے وقت کسی نے اٹھایا, تیاری ہے بالکل, نماز کا ٹائم نہیں. کوئی کہنے میں اثر پڑھ لوں پھر روزہ کھولوں گا, چلے گا. آدمی یہاں تو برابر مائن کرتا ہے, لیکن یہاں نہیں. زکات کی ادائیگی میں تحقیق ضروری ہے. جس کو میں مال دے رہا ہوں آیا یہ زکات کھانے کا حقدار ہے کہ نہیں. اگر ہے تو دینا چاہیے, نہیں ہے تو کسی طرح کا ایچ پیچ کر کے اس کو زکات دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں بیچارہ غریب ہے نا, ارے غریب آدمی کے پاس تو اتنے پیسے ہوئے ج, اگر اتنے پیسے نہ ہوئے تو یہ کیا کرے گا. تو اس کی بیچارگی پر رحم نہیں کھانا چاہیے. تو اس کی بیچارگی پر رحم کھائے گا تو تیری زکات ادا نہیں ہوگی. مسئلہ اسپشٹ سمجھ لو. ایک آدمی نے تحقیق کی, زکات دے دی, حقدار ثابت ہوا تھا, لیکن بعد میں پتا چلا کہ فراڈ ثابت ہوا, غلط آدمی ثابت ہوا. اب 2 مرتبہ زکات دینی نہیں پڑے گی. دے دے تو افضل ہے, لیکن دینی نہیں پڑے گی چونکہ تحقیق ہو گئی تھی. یہ مسئلہ ایسا ہی ہے. ہم کسی ایسی جگہ چلے گئے پتہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے, کسی ایسے جگہ چلے گئے پانی کے 2 کھاڈے بھرے ہوئے ہیں, پتہ نہیں پاک ہے کہ ناپاک. آدمی سوچے گا کہ یہاں سے جانور کا گزر بھی نہیں ہو سکتا ہے, یہ ایسی جگہ میں ہے کہ یہاں کوئی آیا بھی نہیں ہے, کسی نے اندر کوئی ناپاکی بھی نہیں ڈالی ہوگی, چلو وضو کر لیتے ہیں. تحری کی, پتہ نہیں کہ کدھر ہے کعبہ, تحری کی, پھر نماز پڑھی, غلط دشا میں نماز پڑھی تو بھی ہو گئی, لیکن بغیر تحری کے شروع کر دی, کوئی سوچا نہیں, پانی میں بھی سوچا نہیں, پھر پتا چلا کہ میں نے غلط دشا میں نماز پڑھی تو واپس پڑھنی پڑے گی. تو زکات کی ادائیگی میں 2 چیزیں فرض ہے. مستحق کے زکات کی تحقیق کیا کرو اور اس کے بعد زکات ادا کرو. زکات کی ادائیگی میں سب سے پہلے اپنے غریب رشتے دار ہیں, ان کو زکات ادا کرنے میں ڈبل ثواب ہے. ایک زکات کی ادائیگی کا اور ایک رشتہ کے حق کی ادائیگی کا, رشتے داری کے حق کی ادائیگی کا ڈبل ثواب ملے گا. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے غریب رشتے داروں کو ہمیشہ زکات کھلانے کا عادی نہیں بنانا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, میرا فلان رشتے دار بہت مالدار ہے, وہ زکات دیتا ہے, اپنا گاڑا چلتا ہے, اب کون محنت کرے نہ جھنجٹ کرے, زکات تو وہ دے گا مجھے. یہ انسانوں کی زبانیں ہیں, یہ لوگوں کی فطرت ہے.
आप लोगों में बसो तो पता चलेगा। फिर उसकी काया हराम पड़ जाती है, बावजूद मेहनत और कोशिश के वो काम नहीं करता है। इसीलिए एक और मसला इंश्योरेंस का भी समझो। किसी की ब्याजू व्यवहार की आदत पड़ गई है, ब्याज पर काम करता है, अब फंस गया तो बाद मालदार कहते हैं इसको निकालने के लिए हमारा ब्याज दे दे तो क्या वादा है। लेकिन ये अभी हजारों में है तो कल लाखों में आएगा, ये कल लाखों में था तो आज करोड़ों में ब्याजू व्यवहार करेगा, तो उसको ज़कात उसको ब्याज के खाते से निकालोगे तो और बड़ा ब्याजखोर बनेगा। ठीक यहां भी ऐसा ही है, उसकी दानत खराब नहीं होनी चाहिए, उसकी नीति खराब नहीं होनी चाहिए, उसकी काया काम करने वाली हो, वो इसको मेल समझ करके ले, वो इसको मजबूरी के दर्जे में इस्तेमाल करे। लेने वाले को भी चाहिए कि सोचे और देने वाले को भी चाहिए कि इस पर नजरसानी करे। मेहनत से माल कमाया जाता है, कोई फेंक देने की चीज नहीं है। लिहाजा जब हुक्म की अदायगी करे तो उसको बहुत गौर और फिक्र से अदा करना चाहिए। अपने गरीब रिश्तेदारों के बाद दीनी मदारिस इशाअत इस्लाम का काम करते हैं, इस्लाम को जिंदा रखने का काम करते हैं। इसी से मस्जिदों के अंदर नमाज जिंदा होती है, इसी से मदारिस में मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा पैदा होते हैं, रब्बानीयीन पैदा होते हैं। लिहाजा दीनी मदारिस की आबियारी इशाअत इस्लाम का जबरदस्त सवाब है। इसके माल से किसी गरीब तालिब इल्म ने पढ़ लिया और इल्म हासिल कर लिया और वो काम का बन गया, उससे लाखों करोड़ों इंसानों की हिदायत और इस्लाम का सबब बना, उसकी तालीम और तरबियत और उसके इस्लाह से। तो जितनी मेहनतें वर्ल्ड में उसकी हो रही है और उससे जितनी अल्लाह की मखलूक लुत्फ अंदोज हो रही है, हर के नेकी के बराबर ज़कात देने वाले को नेकी और सवाब मिलता रहेगा। और ये नेकियां कभी भी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि इल्म एक आदमी पर इक्तिफा नहीं करता। आज का तालिब इल्म कल का उस्ताद है, कल का उस्ताद परसों का दादा उस्ताद है, और परसों का दादा उस्ताद परसों का सकर दादा उस्ताद है। यानी क्या मतलब, यह इल्म नस्लों तक जारी रहता है। मसलन हमने हमारे असातिज़ा से पढ़ा, इन्होंने अपने असातिज़ा से पढ़ा, इन्होंने उनके असातिज़ा से पढ़ा, मुझसे मेरे शागिर्दों ने पढ़ा, मेरी 4 पीढ़ी पढ़ाने वाली मेरी हो गई, यानी मुझसे पढ़कर पढ़ाने वाली 4 पीढ़ी हो गई। तो मालूम क्या हुआ, 3 पीढ़ी, मुझसे पढ़कर पढ़ाने वाली 3 पीढ़ी हो गई जो पढ़कर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जितना सवाब इनको मिलता है मुझे भी मिलता है, और मुझे जिस माल से पढ़ाया गया उस माल से उन मालदारों को भी मिलता है जिन्होंने माल खर्च किया। ये एक दाखला है। लिहाजा इशाअत इस्लाम की भव्य खिदमत के पीछे अपना माल लगाना चाहिए, ज़कात की अदायगी में मुकद्दम रखना चाहिए। देखो, यह है ज़कात के चंद मोटे मोटे मसाइल, फजाइल और अहकाम। ज़कात की अदायगी से वबा से हिफाजत होती है, ज़कात की अदायगी से ताउन से आदमी बच जाता है, ज़कात की अदायगी से कुरान करीम की सूरह नूर में और हदीस में एक वाक़या बयान किया है कि कुदरत उसके माल की हिफाजत करेगा, उसके बाप की हिफाजत करेगा, उसकी दौलत की हिफाजत करेगा। लिहाजा हमें खुशदिली के साथ ज़कात अदा करनी है। हमारे घरों में बेटियों के पास दागीने हैं। एक बेटी वो होती है जिसकी शादी नहीं हुई, सगाई हो गई, 3 साल 4 साल सगाई रही, 5 साल सगाई रही। ये दागीने ससुराल के दिए हुए हैं। कुछ दागीने माँ भी रख देती है बेटी के लिए, थोड़ा थोड़ा करके जमा करती है। तो अभी माउतर ने शादी का दिन बेटी का नहीं आया तो बेटी को दिया नहीं है, ससुराल ने आरियत का दिया है। तो ससुराल वाले इस माल के मालिक हैं और उस माल के मालिक बेटी के माँ बाप हैं। जिस दिन निकाह हो गया और बेटी को ससुराल की तरफ से माल मिला और बेटी को मैके की तरफ से माल मिला, तो मैका मालदार मालिक बना देता है। बाप और माँ ये नहीं कि बेटी को रुखसत किया तो चलो खाली अभी शो के लिए पहनने दिया हो, बाद में उतार लेते हो, माउतर उतारते नहीं है।
लेकिन ससुराल उतार लेते हैं। क्या मतलब? अब हमारे यहाँ पुरानी सिस्टम थी वो बदली है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक दागीने में 2-2, 3-3, 4-4 बेटे को पढ़ना लेते थे। शादी हो गई, माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं, बेटे से कहा तेरी बीवी से दागीने ले ले ताकि दूसरे भाई की शादी हो जाए। फिर तीसरे का टाइम आया तो उससे कहा तेरी बीवी से दागीने ले ले ताकि तेरे भाई की शादी हो जाए। गुर्बत थी, लोगों के पास था नहीं, तो एक दागीने की जोड़ी में 5-5 बेटे भी पड़ जाते थे। तो इस सूरत में माँ बाप मालदार हैं, बेटा भी मालदार नहीं और बेटा भी मालिक नहीं। माँ बाप ने बेटे को मालिक बनाया, बेटा मालदार है, बेटे को ज़कात देनी पड़ेगी। जो मालिक है उसको नियत करनी है, शॉर्ट में इतना। अब मिल्कियत किसकी है इस पर पूरा मसला डिपेंड है। मिल्कियत औलाद की है, औलाद नियत करेगी। मिल्कियत माँ बाप की है, माँ बाप नियत करेगी। बस लोग कारोबार में बहुत आगे होते हैं, शेख साहब है, अब माँ बाप को तो बिचारों को पता भी नहीं है, तो ये माल औलाद का है। लेकिन औलाद को याद रखना चाहिए, अगर बाप के माल से माल बढ़ा है, जिसको माले मुस्तफा कहते हैं, बाप के पास 50,000 से जा बेटा काम कर, इतने पैसे मेरे पास है, और बेटा 50 लाख का मालिक बना, तो ये 50 से 50 लाख वर्षे में बाप की मिल्कत होगी, ये बेटे का नहीं। क्यों कि 50,000 से 50 लाख बनने थे। शरीयत में बहुत बारीकी है। बाद मर्तबा क्या होता है, एक फैमिली जॉइंट है, एक बच्चा होशियार निकला, बाप ने दे दिया, हालांकि ये पंच का माल था। अब वो कमाता है तो बाप भी उसी की तरफ दौड़ लगाता है कि ये कमाता है ना, वो 2-3 कमाते नहीं। फिर जब लोखे पड़ते हैं तो कहते हैं तो मेरे पैसे थे, मैंने इसको दिए थे, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं। ये बाप बड़ा बेइंसाफ जालिम है, इसलिए कि पंच का माल था। सोचो मुआशरे में किस किस लाइन से जुल्म होता है। एक जुल्म किसी निर्दोष को तमाचा मार दिया, ये भी जुल्म है। इससे खतरनाक जुल्म मुआशरे में ये है जिस पर इंसानों की निगाह नहीं। बहन को मीरास से महरूम रखना, बेटी को मीरास से महरूम रखना, ये भी मुआशरे में जुल्म है, जिससे तौबा जरूरी है। हालत बहुत नाजुक है। कल 7 जनाजे गए कब्रिस्तान, जरा तवज्जो से सुनो, जिनमें अक्सर औरतें हैं। एक खौफ दिल से निकाल दो, इतना बड़ा मजमा है, कोरोना वायरस अजाब है, कहर है, ये अल्लाह का अजाब है, दिल में बिठाओ, ये अल्लाह का अजाब है। माहिरीन नब्बास अलमा फरमाते हैं ये अल्लाह का अजाब है, इसलिए होशियार रहना है। जर्रा बराबर गफलत और बेतवज्जुही नहीं चलेगी। हम नौजवानों ने कौम मिल्लत से 2 हाथ जोड़कर आजीजी से कहते हैं, भाई ये अल्लाह का महीना है, इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। क्रिकेट का खेल अमीर शरीयत गुजरात हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकात मलालिया फरमाते हैं ये मकरूह तहरीमी है, आम दिनों में भी। तो रमजान में बड़ी कितनी इसकी हुर्मत खतरनाक होगी। खेलने के लिए रमजान आया है, क्रिम बोर्ड के लिए रमजान आया है, तमाशे के लिए रमजान आया है? नहीं मेरे बुजुर्गों, जवानों, थोड़ी देर के लिए शौक पूरा हो जाएगा, लेकिन हमेशा की कब्र। किसी के जनाजे में तो शामिल हो जाओ, किसी को कब्र में तो उतार दो। अरे किसी के जिस्म पर गुस्ल में पानी तो डाला करो। तब तो बाहर बैठते हैं, मोबाइल में मशगूल है, ये करने का काम है। अरे किसी को कफन की चादरें तो पहनाओ। कल 4 खातून का इंतकाल हुआ, छोटे छोटे बच्चे बिलबिला रहे हैं, माँ 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 माँ, जिसने उसको एक लहजे के लिए भी छोड़ा नहीं है, और अपनी माँ की वफाओं को याद करके रोते हैं, रुलाते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं, खाना नहीं खाते। तो क्या कोई जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होगी खेलने वालों पर? नहीं, वो अल्लाह बड़ा इंसाफ का मालिक है, वो तेरे घर में भी ये मुसीबत जमा कर सकता है। डरो, सोचो, वो अल्लाह तेरे घर में भी ये मुसीबत जमा करेगा, तो तू क्या करेगा उस दिन? यहां की पुलिस से तो तू छूट जाएगा, यहां का दम दे करके तो तू बच जाएगा, लेकिन मालिक जुल जलाल वल इज्जत को तू क्या जवाब देगा? पूरा वल्द मुत्तफिक है, चेपी रोग है।
फैलता है। ये जरूरी नहीं कि मरने वाले सब कोरोना में मरते हैं। कल साबिरा जौजा हारून पडाया इंतकाल कर गई, कोरोना में इंतकाल नहीं हुआ, उसके पूरे फेफड़े में पेंचर था, लेकिन नाम दे दिया कोरोना। देखो, मैं बहुत पति की बात होती है वही बयान करता हूं, बेसनद बात बयान करना जहन्नम की लगा में खुदा पहनाएंगे उस वारिस को जिसने बेसनद बात बयान की। यह हमारी आदत नहीं। खूब दिल से ये निकालना है कि देखो अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, लेकिन मतलब ये नहीं कि मनमानी करें। मास्क पहनना भी जरूरी। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, देखने जाने वाले, भाई क्या जरूरत है? मरीज को तो किसी की मुलाकात से मना नहीं है। यहां तो अपने घर की हॉस्पिटल है, दादागिरी, लड़ाई झगड़े। बाहर की हॉस्पिटलों में तो दाखिल हो गया, जब बाहर आएगा तब तुम्हारा, चाहे जिंदगी की सूरत में चाहे बॉडी की सूरत में। वहां तो एक अलिफ बोलने की हिम्मत नहीं, और यहां तो जरा बराबर कोई साइड में रहो तो तेरी माँ ने तेरी बहन। या क्या ये कोई इंसाफ है? ये क्या कोई अकलमंदी है? हॉस्पिटलें आजिज हो चुकी है। वो कहते हैं कि इसको बंद करो किसी हीले बहाने से, तो फिर कौन इलाज करेगा? जरूरत है इस बात की, अगर हमें हमदर्दी है, किसी मरीज के साथ गमखारी है, घर के लोग सेवा करें, खिदमत करें। हम इनकी ताईद और तकवीयत, भाई ये 5,000 रुपये तुम ले जाओ, तुम्हारे घर में इलाज चलता है, ये लिल्ला पैसा है, तुमको काम आएगा, ये इंसाफ है। मस्जिद में 2 रकात पढ़ ले, ऐ अल्लाह मेरा फूला रिश्तेदार हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा है, ऐ मेरे मालिक तू ये कहर से उसको निकाल करके बहर में जगह दे दे, देखो ये दुआ कबूल होगी। अरे मस्जिद में बैठकर 1 पारा कुरान पढ़ लो, 141 मरतबा या सलामू पढ़ लो, और कह दो रिश्तेदार से कि इन हालात में मैं तेरे पास भीड़ और संक्रमण करने से मेरा कोई फायदा नहीं, लेकिन मैंने मेरे मौला से इस मेरे बीमार के लिए सदका किया है, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने दुआ की है। ये इतना तेज पहुंचेगा कि वो उसके बिस्तर पर, वो उसके बेड पर इतना तेजी के साथ उसको फायदा करेगा कि जितना संक्रमण करके उसकी बीमारी को बढ़ाने के मुकाबले में ये अमल मुफीद है। तो समाज की तरफ से ये लंबा ऐलान है, इसमें 4 चीजें हैं। एक तो 11:30 बजे बंद होता है, तो 11:30 बजे से पहले अपने अपने घरों में जरूरियात से फारिग होकर पहुंच जाएं। इस्लामी ममालिक में मसाजिद बंद है, इस्लामी ममालिक में मसाजिद बंद है। जिन इस्लामी ममालिक में मसाजिद खुली है वहां 8 रकात पढ़ने देते हैं, और वो भी इंजेक्शन अगर ले लिया है वैक्सीन का और उसकी सर्टिफिकेट है तो मस्जिद में दाखिला, बाकी मस्जिद में दाखिला नहीं। ये आप तक रखना, अल्लाह हिफाजत करे इस मुल्क में वो हालात ना आ जाए। तो ये न समझो हम अमन में है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम सुकून में, लेकिन अगर हमने इस महीने की अजमत को फाड़ा तो याद रखो खुदा का कहर जोश में है, और कहीं इस कहर की भट्टी में सबको भूल न ले खुदा। तो कल 7 मैयत एक साथ दफनाए गए, एक को गाड़ी लेकर गई दूसरे को छोड़कर आई तीसरे को छोड़कर आई चौथे को। तो क्या ये हालात हमें कुछ भी इबरत का निशान नहीं है? क्या फिर भी हमारी तबीयतों में कोई फर्क पैदा न हो? मेरे बुजुर्गों, सोचो समझो। तो 11:30 बजे से पहले अपने अपने घरों में आ जाना है, अपने घर में रहना है, और अगर घर में तबीयत नहीं लगती तो मस्जिद में ठहर जाओ, मस्जिद में ठहर जाओ। पुलिस मस्जिद में तो नहीं आती है, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, तिलावत करो। अरे यहां आकर सोते रहो, और रात को जब तबीयत चाहे घर चले जाओ। इससे तो कोई पकड़ता नहीं है, इससे तो कोई रोकता नहीं। गलियों में खेलने वाले को पुलिस पकड़ेगी और उसको जमानत भी नहीं देगी, और आगे वालों को भी कहा कि तुम्हें जामीन लेने के लिए आना भी मत। उनका भी एक नियम है, एक जाब्ता है, एक कानून है। दूसरी चीज, बीमार पड़े तो कम से कम आदमी इयादत फोन पर कर ले, एक आदमी जा करके बाहर से पूछ करके आ जावे। मस्तूरात को रोको, औरतों को रोको इयादत से, औरतों को रोको ताजियत से, भाई तुम्हें नहीं जाना है, यहां रहो।
हम ये नहीं कहते उसका चेप इसको लग जाएगा, लेकिन जो बीमार है वो परेशान होता है, इसमें उसकी हमदर्दी नहीं है, इसलिए मत जाओ वहां, फोन से पूछ लो। खानदान में से एक आदमी जाकर के खबर ले ले और फिर आकर के खबर सबको पहुंचा दे। ये तरीका है इस्लाम में, इस तरह काम करें। अगर अल्लाह ने बहुत हमदर्दी दी है तो उसकी माली मदद कर दो। बहुत बड़ा खर्च मेडिकल में होता है, जो 200 रुपए की लेबोरेटरी थी 2000 में होती है, जो सिटी स्कैन 1000 में होता था वो 5000 में होता है। एक सिलसिला ये भी चला है। तशखीस भी सही होती है, सही नहीं भी होती है, हालात ही हालात है हर तरह के। इसलिए पहले नंबर में अगर तबीयत नामुनासिब हुई तो भाई जरा अच्छे समझदार डॉक्टर से इलाज भी ले लो, अच्छे डॉक्टर से इलाज ले लो, और इलाज में जिन चीजों की पाबंदी करें उन पाबंदियों को निभाओ। आजादी अच्छी चीज नहीं, रात को घर से कम बाहर निकला करो, अपनी जरूरत के मौके पर ही दिन रात में निकलो, बाकी अपने घरों में रहकर इबादत का महीना है। गैर मुस्लिम कहते हैं तो मुसलमानों को तो अच्छा ही है, वो तो रोजा रखकर बाहर निकलने वाले नहीं, उनको तो यूं भी रमजान है, तो हमारे लिए गनीमत का सीजन है, घरों में रहे ज्यादा, जरूरत हो इतना वक्त बाहर जाए, बाकी घरों में मस्जिदों को आबाद करे। बीमार कोई पड़े या इंतकाल हो जाए तो 50 आदमी की छूट है, गवर्नमेंट चाहे तो हम पर एक्शन ले सकती है, ये तो सब चला जाता है। मास्क पहन करके जावे जनाजे में जाने वाले, कम तादाद में जावे, खुसूसन खवातीन के जनाजे में तो कम तादाद में जावे। मर्दों के जनाजे में भी 50 आदमी, जिसके जनाजे की नमाज 40 पढ़ लेते हैं उसकी मगफिरत हो जाती है। रमजान में मरने वाले की मगफिरत हो जाती है, रमजान में मरने वाले की शहादत की मौत नसीब हो जाती है, रमजान में मरने वाला कब्र के फितने से बच जाता है। कितनी ऊंची मौत है ये, इस पर अफसोस नहीं होना चाहिए। वो तो जिंदगी की मांगी हुई कोई दुआ है जो कबूल हो जाती है। कल एक सादा फैमिली के अंदर मियां बीवी दोनों एक साथ चले गए, हालात है, तंबीह और इबरत की निगाह रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें मसले की सही सूरत हाल समझकर इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक ऐलान यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस ने अपने अपने एतबार से काम किया है, वायरस में भी जिस हैसियत से किया। हमने भी यहाँ श्रीनगर के बजाय मांगरोल में मकान के अंदर काम किया था। 125 लड़के रहते थे, 250 बच्चियां पढ़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 11 उलमा फारिग हुए, 3 हाफिज फारिग हुए और 13 बेटियां आलिमा हुई, जो बगैर लॉजिंग बोर्डिंग के किराए के मकान में पढ़ते रहते थे। इस साल 5 जगह बदली अलग अलग, लेकिन इन्होंने तालीम जिंदा रखी तो 13 बेटियों ने आलिमा का कोर्स पूरा किया, 11 लड़के आलिम हुए और 3 हाफिज कुरान हुए। श्रीनगर मदरसे का पिछला साल भी मांगरोल और वेरावल के अतराफ से 31 लाख का चंदा हुआ था, जबकि उस वक्त का तकरीबन खर्चा 1.25 करोड़ का था। मैं सफर में था, वहां से भी दूसरे दिन लॉकडाउन, लेकिन वहां तो किसी की चलती नहीं, घर में जगह दे दी, वहां रहे। घर के कोले के बाहर भी निकलने का नहीं, घर के कोले के बाहर भी आदमी निकल नहीं सकता। ये कानून को लोग फॉलो करते हैं इतना ज्यादा। वॉकिंग के लिए जा सकते हैं शराइत की पाबंदी के साथ, लेकिन उसमें भी बहुत बड़े मसाइल होते हैं। तो वो साल भी हमारा बेकार गया। इस साल का भी काफी खर्चा है, आइंदा साल चलाने के लिए भी 1.25 करोड़ का बजट है। इस हिसाब से हमारी आजीज़ाना दरखास्त है, हर साल आप देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस साल हमारी आजीज़ाना इसरार के साथ आपसे बहुत ही अदब के साथ दरखास्त है कि इस मरतबा 6 महीने की उस्तादों की तनख्वाह बाकी है, हालात में है, कर्जों में है। भाई अगर आपकी ज़कात है, सदका खैरात है तो 1/3 हिस्सा जरूर हमको देना। इससे पहले मैंने कभी आपसे इतनी इसरार के साथ दरखास्त नहीं की, क्योंकि मेरे असातिज़ा के 6 महीने की तनख्वाहें स्टाफ की बाकी है। ये महीना है लेने देने का। अल्लाह ने फजल भी फरमाया है, किसी न किसी हैसियत से कहीं न कहीं अल्लाह हमारा गाना चला देता है। 15 रुपये तरों पर बिकते थे, आज 50 रुपये बिकता है, 70 रुपये बिकता है, 100 रुपये बिकता है, यानी हमारी बाजार में 50 भाव तो है। तो अल्लाह ताला ने हमारे साथ कमी नहीं की,
पहले 5,000 निकलते थे, आज 50, आज 1,000 निकलते हैं, लेकिन उसकी कीमत देखो, इसकी कीमत देखो। यानी अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह इंसाफ का मामला करता है, अल्लाह दे देता है। लिहाजा नमाज से फरागत के बाद एक बहुत बड़ा कर्ज और जंगी खर्च सामने है, और इशाअत इस्लाम का जबरदस्त सवाब हमारे आपके नामाए अमाल में है। हमारी सखावतों से मदारिस जिंदा होंगे, और 1/3 ज़कात दीनी मदारिस के पीछे वक्फ करें, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मदरसे का ताउन करते जाएं। तो नमाज से फरागत के बाद साथी बैठेंगे, अपने माल की ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से श्रीनगर मदरसे का भरपूर ताउन फरमाते जाएंगे। जिन जिन हजरात के पास हम नहीं पहुंच सकते हैं, चूंकि मैं आमतौर पर मस्जिदों की मामूलात में ज्यादा मेरा वक्त जाता है। 17 रमजान को यहाँ कुरान खत्म होगा, 21 से 30 अलग अलग मसाजिद में तरतीब बनी हुई है, जिन तक हमारी आवाज और मैसेज पहुंचता है, इनसे गुजारिश है अपनी तरफ से भी 2 कदम चल करके तमाम मदारिस और खुसूसन जामिया तालिबुद्दीन सीडोगढ़ की बच्चे और बच्चियों के इन मदरसे की भरपूर नुसरत, मदद, ताउन और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिए हुए अल्लाह के सरमाए में बरकतें नसीब फरमावे, अल्लाह की हिफाजत फरमावे, अल्लाह वायरस से पूरी कायनात को अमन अमान नसीब फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम हजरात, एक गुजारिश ये है, हजरत अमीर शरीयत गुजरात मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकातुहुम आलिया का एक पैगाम उम्मत के नाम है जो आप तक पहुंचा देते हैं कि इन हालात में हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया 4 काम करने हैं। हर एक की तरफ से रोजाना घर में जितने भी मेंबर हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, रोजाना सदका करना है, अलग अलग नाम से हर एक का। ये जरूरी नहीं कि आप 500 1000 रुपए दो, एक एक की तरफ से 2-2 रुपये नियत करके निकाल कर 10 रुपये ही दे दो तो भी चलेगा, एक सदका, इससे बला खत्म होती है। दूसरे नंबर में दुआ का एहतिमाम कि ये वबा अल्लाह ताला जल्द खत्म कर दे। तीसरे नंबर में दुरूद कसरत से पढ़ना है, और चौथे नंबर में चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इस्तिगफार करना है। और फरमाया कि वबा बहुत खतरनाक है और पूरी उम्मत तबाही के दहाने पर आकर के खड़ी है, और नबी की पूरी उम्मत दर्द और बला में मुब्तला है। लिहाजा लोगों से दरखास्त की है कि दुआ का एहतिमाम करो, चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते रहो। अपनी हैसियत से रोजाना भले 1 रुपया ही एक की तरफ से निकालो, लेकिन सबकी तरफ से सदका नियत करके निकालो। दूसरी बात, इलाज की गर्ज से, जिसको मैंने कल रात भी किया, इसीलिए मैंने अपने पर तजर्बा किया है तो मैं आपको बताता हूँ। एक कपड़े में थोड़े से अजमा, थोड़ा सा कपूर, 2 लविंग, 2-3 लविंग, और अगर आपको मिल जावे कलूंजी के दाने तो उसको कपड़े में एक पोटली बना करके इसको थोड़ा मसल करके एक नाक बंद करके एक नाक से खींचने का, सांस लेने, यानी नाक अंदर ले जाने का, फिर ये नाक बंद करके इधर के नाक से सांस लेने का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन इस इलाज से इतना जबरदस्त फायदा हुआ कि मैं बोल सका, वरना मेरी आवाज भी दब गई थी, और सर्दी और जुकाम और खांसी रात भर परेशान। तो बहुत मुख्तसर इलाज है, 10 रुपए की ये दवा बन जाती है, हर एक के लिए मुफीद है। बुखार भी खत्म होता है, नज़ला भी चला जाता है, कफ भी छूटा पड़ता है, ऑक्सीजन में भी मदद मिलती है। कपूर, सफेद कपूर जो आता है जिसको हम मैयत में इस्तेमाल करते हैं, अजमा, कपूर, लविंग, कलूंजी न मिले तो अजमा, कपूर ने लविंग, इसको कपड़े में रखकर पोटली बनाकर इसको लंबा लंबा सांस रोजे की हालत में नहीं ले सकते, रोजे की हालत में लेंगे तो रोजा खत्म हो जाएगा। मगरिब के बाद से सुबह तक ले सकते हैं, सहरी तक। और जो बीमार हैं वो तो हर वक्त ले सकते हैं, उनका रोजा नहीं है तो, अगर रोजा छोड़ दिया है। ये मुफीद इलाज है, मैंने कल आजमाया है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में बोलने की हिम्मत कर सका हूँ। लिहाजा और तो बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन इस इलाज से फायदा बहुत नजरों के सामने है, इसलिए नफे की गर्ज से मैंने आपकी खिदमत में पहुंचा दिया। मुझे भी किसी से ऊपर से आया था, आयुर्वेदिक इलाज से फायदा होता है।
اللہ सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं। दुआ इबादत का मकसद है, दुआ तकदीर को बदल देती है, दुआ मोमिन का हथियार है। रमजान का महीना है, रोजे की हालत में है, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह जरूर बला खत्म करेंगे। घर में हिम्मत दिलाओ बीमारों को, घबराने का नहीं, मर नहीं जाओगे, हिम्मत दिलाओ। औरतों को खास हिम्मत दिलाने की जरूरत है, इनको हिम्मत दिलाओ, मर नहीं जाओगे। हॉस्पिटल में दाखिल हो तो क्या हो गया, अल्लाह ने बीमारी रखी है तो ज मौत आएगी। नैतिक हिम्मत बहुत जरूरी है। दवाई इलाज भी करना है, ये नहीं कि मेडिकल में से लेकर दवाई पीते रहो। जब भी तकलीफ हो जाए तो एक काम ये करो, दवा खाने जाने से पहले, घर से निकलने से पहले सदका भेज दो, 10 रुपये भेजो, लेकिन सदका भेजे बगैर दवा खाने मत जाओ। और नीयत ये करो, ए अल्लाह, इस सदके के जरिए से जिस डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ, इसको मेरी सही बीमारी वो पकड़ ले और सही दवा मुझे तजवीज़ करे। वरना एक आदमी को 20 बोतल चढ़ा दिए और लीवर ही खत्म होने के करीब हो गया, बीमारी कोरोना थी नहीं और कोरोना का इलाज हो गया। अब हर एक को कोविड दिखता है, दूसरा तो कुछ दिखता नहीं। मेरे बुजुर्गों, हम इनको कसूरवार नहीं मानते हैं, उनकी एक ज़हनियत बनी हुई है मेडिकल साइंस की, लेकिन हम नबवी इलाज, सुन्नत इलाज तो करके जाएं। सुन्नत ये है कि हम सदका करके डॉक्टर के पास जावे। ऐ अल्लाह, मेरे हक में जो सही दवा है वो तजवीज़ डॉक्टर के दिल में आ जावे, ताकि मुझे वो सही दवा दे। दवाएं पीवे तो सुन्नत तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़कर, यानी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु, वो बिस्मिल्लाह खाने वाला नहीं पढ़ने का, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। तेरा नाम लेकर मैं दवा इस्तेमाल करता हूँ, जिस नाम की बरकत से कोई तकलीफ बाकी नहीं रहती है, वो दुआ पढ़ने की। खाने वाली बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ने की, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। तेरा नाम लेता हूँ जिस नाम की बरकत से दुनिया आसमान और जमीन में कोई चीज मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती है। खैर, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहे। जिनकी मौतें हो गई, बहुत दुख है, बहुत दर्द है। जो माएँ चली जाती है, औलाद बज़ाहिर बहुत तंगियों में मुब्तला हो जाती है, अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं। हिम्मतें दिलाओ, इलाज भी करो, अल्लाह से मांगो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाल व अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्अस समावात व लकल हम्दु मिल्अल अर्द व लकल हम्दु मिल्अ मा शि'त मिन शैइन बअद। या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम, या रहमान या रहीम, या गफ़ार या सत्तार, या वहाब या अजीज या अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंत इलाही व इलाह कुल्लि शैइन इलाह वाहिद ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाह, आपने रमजान का मुबारक महीना दिया, आज उसकी दूसरी जुमा है, तेरे चेहरे में चेहरा डाल करके सब बैठे हैं। ऐ अल्लाह, कितना खुशकिस्मत मौका है ये। हम जैसे ऐ अल्लाह गंदे इंसान, हम जैसे हकीर और जलील इंसान, और ये शराफत और सआदत हमें कैसे नसीब हो। तेरे रुखे अनवर में रुख डाल करके तुझसे कलाम कर रहे हैं, तेरे चेहरे में चेहरा डाल करके तुझसे हम कलामी का शर्फ हासिल हो रहा है, तुझसे नजर नियाज कर रहे हैं, तुझसे बातचीत कर रहे हैं। अल्लाह, रोजों की लाज रख ले, नमाजों की लाज रख ले, जुमा के मुबारक दिन की लाज रख ले, तेरे मुबारक महीने रमजान की लाज रख ले। वबा को खत्म फरमा दे, वबा को खत्म फरमा दे। कायनात बहुत दर्द के सांस ले रही है, जुल्म की चक्की में पीसी जा रही है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कौन सा इलाज करे, कौन सा इलाज न करे। यकीनन ये तेरे कहर की अलामत है। मेरा रब, तेरा अजाब समझ में आता है, इसलिए कि इलाज किसी की समझ में नहीं आ रहा है, उसी को तो तेरा अजाब कहा जाता है, इसको बीमारी नहीं कहा जाता है। इंसान है, अपने दिमागी ख्यालात से कोई न कोई तजवीज करता है। ऐ रब्बुल आलमीन, हम तो तेरा कहर समझते हैं, तेरे कहर को महर में बदल। तेरे नबी ने तो फरमाया था कि रमजान का पहला अशरा रहमत का अशरा है।
अल्लाह इस रहमत के अशूरे में तेरा कहर बरस गया है। बहुत दर्द में, बहुत दुख में जुल्म की चक्की में पीसी जा रही है, न पैसे हैं कि इलाज करे। ऐसा खूब दिल पर तारी हो चुका है कि मर जाएंगे, मार डाले जाएंगे, कब्रिस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे। जनाजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नमाज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे परवरदिगार, दुनिया ने ऐसी मुसीबत कभी नहीं देखी थी, ऐसे काले दिन कभी नहीं आए थे। और इंसान से सादिर होने वाले अमाल जालिमाना पेश खैबा है। चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, तेरा खौफ निकल चुका है, तेरा खौफ निकल चुका है। जहां बीमारों की खिदमत करनी चाहिए वहां भाव बढ़ा करके बैठे हैं। मेरे परवरदिगार, किसका रोना रोए, कौन सा दुख तेरे दरबार में पेश करे। ऐसे परवरदिगार पता नहीं चलता है किस नगद से उम्मत में काम किया जाए, क्या काम किया जाए। ए मेरे परवरदिगार, तू सही दिशा और दशा बता दे, तू सही दिशा और दशा बता दे, सही दिशा और दशा बता दे। अब तो परेशान है किस उन्वान से उम्मत का कौन सा काम करे। ए मेरे परवरदिगार, लेकिन उम्मत बहुत दुखी है। ओ दर्द का दरमा, ओ दर्द का इलाज, तेरे अलावा कोई पनाह की जगह दे। यकीनन माह मुबारक में मरने वाले की मगफिरत हो जाती है, इसको तू जन्नत दे देता है। लेकिन छोटे छोटे मासूम बिलखते बिलखते बच्चे छोड़कर भाई चली गई, जिन्होंने क्या क्या इन बच्चों के लिए घर में छोड़ रखा था, क्या क्या मुजाहदा करके इनके लिए तैयार किया था। वो मासूम मासूम बच्चियां कहती है, मेरी माँ लाओ, मेरी माँ लाओ, मुझे कौन खाना खिलाएगा, मेरे कौन दागिनी खिलाएगा, मेरी कौन ये फिक्र करेगा, मेरी माँ लाओ। लेकिन सुनो तो ये माँ वापस आने वाली नहीं है, वो तो तेरे दरबार में चली गई। वो तो एक अमानत थी जिसका वक्त पूरा करके तूने ले लिया। कल को हमारा भी वक्त आएगा, ये जितने उठे उठे हाथ हैं जो रोजे में रो रहे हैं, और मेरा रब ये रोना तो कबूल कर ले, तुम्हारे की गुर्बत पे काम आएगा, मैंने मशहूर की रसवाई में काम आएगा। मौत तो मरे आनी, मरना तो मरना ही है। ये आंसू गर्म गर्म कब्र की अंधेरे में काम देंगे, माशर की रसवाई में काम देंगे, अरे फूले सराज पर काम देंगे, अरे जन्नत दिलवाएंगे। वो आंसू जो तेरे खौफ से रोया है, वो जहन्नम हराम है उस पर, यह मजमे पर जहन्नम हराम है, ये जहन्नमी नहीं हो सकते जो तेरे खौफ से रोए हैं। पूरी उम्मत से दुख दर्द को दूर फरमा दे। ओ दुख दर्द के पैदा करने वाले अल्लाह, इन बेटियों को सुकून दे दे, इन बच्चों को सुकून दे दे। और माओ को तूने कब्र में ले जाकर जन्नत दे दी, तूने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी, तूने उनको कब्र के फितने से बचा लिया, तो उनकी मासूम औलादों को अल्लाह सब्र अता फरमा, हिम्मत अता फरमा। खानदान के खानदान अल्लाह हॉस्पिटलों में पड़े हैं, कहीं मियां बीवी साथ मर रहे हैं, कहीं शौहर बीवी साथ जा रहे हैं, कहीं भाई बहन साथ में जा रहे हैं। ऐ अल्लाह, कोई बहन जा रही है तो भाई भी बीमार है, वो भी मौत अपनी आंखों के सामने देख रहा है। साहबा बच्चों के मुजालिम से चूर चूर होकर मदीना गए, 110 थे, बहुत उम्मीदें थी कि यहाँ सुकून से जिएंगे, आराम से जिएंगे, खुशी खुशी में समाते नहीं थे, और मदीना के बुखार ने पकड़ लिया। बिलाल कहता है मौत जूते के तस्मे से ज्यादा करीब है। अबू बकर कहता है हाय मदीना का बुखार, हाय मदीना का बुखार। अम्मी आयशा फरमाती है, ओ नबी जी, अबू बकर बुखार में है, बिलाल बुखार से सरसार है, और वो मौत को अपने जूते के तस्मे के करीब पाता है, और वो मक्का के बाजार याद करता है, दुआ कर दो मदीना का बुखार खत्म हो जाए। अरे अल्लाह, फिर नबी जी दुआ की थी। सहाबा के बुखार की परेशानी को देखकर अल्लाह सहाबा को बुखार से निजात दे दे। वनकुल हम्मा मदीनता इलल जुहफा, और नबी ने फरमाया था वनकुल हम्मा मदीनता इलल जुहफा, ये मदीना के बुखार को खत्म कर दे। ये भी बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, नजला है, और इंसान फटाफट गिर जाता है, फटाफट सांस बंद हो जाता है। अल्लाह, बहुत खतरनाक हाल हो जाता है, डॉक्टर को इलाज समझ में नहीं आता है। अल्लाह, इंसानियत का सब्र भी बढ़ जाता है। सब्र का महीना है, सब्र अता फरमा।
हिम्मत अता फरमा, खवातीन को खुसूसी हिम्मत अता फरमा, घर के खानदान के मर्दों को तौफीक अता फरमा कि खिदमत करे। डर का माहौल नहीं है, तेरे कहर से जरूर डरना चाहिए, तेरे अजाब का जरूर खौफ, और उसका इलाज ये है कि तेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं। अल्लाह पूरा मजमा तेरी तरफ मुतवज्जे है, रोजे की हालत में तुझसे माफी की भीख मांगता है। हमारे गुनाहों की नहुसत से हम तौबा कर लेते हैं, इससे बड़े अजाब से हम तेरी पनाह मांगते हैं। मखलूक तो हमको डरा रही है, मेडिकल साइंस तो हमको डरा रही है, लेकिन तू कहीं गया नहीं है। ए साइंस का मालिक रब अल्लाह, ए इन तमाम अनासिर अरबा के पैदा करने वाले खुदा, ए इंसानों की अकल उसमें इस्तेमाल करने वाला रब, तू कहीं गया नहीं है। हम तुझसे शिकायत करते हैं, हम तुझसे फरियाद करते हैं, बीमारियों को खत्म फरमा। जो घरों में इलाज ले रहे हैं, सेहत शिफाए कामिला दाइम आजिला मुस्तमिला नसीब फरमा। जो हॉस्पिटलों में इलाज ले रहे हैं, जल्द घर का रुख अता फरमा। अल्लाह डॉक्टरों के हाथ सही इलाज तजवीज फरमा, डॉक्टरों के हाथ सही नुस्खा तजवीज फरमा। जल्द बीमारों को अल्लाह बीमारियों से खड़ा फरमा दे। अल्लाह नौजवाना ने कौम मिल्लत को तेरी तरफ जबरदस्ती झुका दे, इनके कुलूब को तेरी तरफ आमदगी नसीब फरमा दे, इनके दिलों के गुस्से को खत्म फरमा दे। हम उनकी आजादी छीन नहीं रहे हैं, हम उनके खैर ख्वाह है, हम उनके करम फरमा है, हम उनके खैर ख्वाह है। ये तेजी के साथ मौत के दहाने की तरफ जा रहे हैं, ये तेजी के साथ अल्लाह हलाकत के दहाने पर जाकर खड़े हैं। अगर इनको जरूरत पड़ेगी हम जबरदस्ती से रोकेंगे, नसीहत से समझेंगे नहीं तो हाथ पैर से समझाएंगे। ऐ अल्लाह, ये जवान अगर तबाही के दहाने पर खड़ा है और तबाही में घुस गया तो कायनात वापस खड़ी नहीं हो सकेगी। यह हमारी कौम का सरमाया है, यह हमारा रासुल माल है, यह हमारी पूंजी है, इनकी हमदर्दी हमारे दिलों में है। ऐ मेरे परवरदिगार, तबाही के दहाने पर खड़े इन जवानों को तबाही से निकाल कर रब कायनात तो वापस मसाजिद की तरफ ला दे, तो वापस कुरान की तरफ खड़ा कर दे, जिक्र तिलावत की तरफ खड़ा कर दे। जवानी की मस्ती से नजात अता फरमा दे। टावर के मैदान को इशा के वक्त मुसलमानों के भरने से तो इस बस्ती की हिफाजत फरमा ले। मेरे परवरदिगार, ये क्या इस्लाम है, ये क्या मुसलमानी है। हम अपने शायर को बदनाम कर रहे हैं। कौम तो दब करके बिरादरान वतन तो घर में घुस जाते हैं और हम अपनी तबाही को खड़े चौक ला करके पेश कर रहे हैं। हम तौबा करते हैं सबकी तरफ से, कसूर हमारा है, ये तो निर्दोष है, हमने उनको हक नहीं समझाया। मेरे परवरदिगार, इस जवान तबके को जो तबाही में गिरने के करीब है, तबाही से निजात अता फरमा कर अपने घरों में करार नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, जितने लोग जिस किसी परेशानी में मुब्तला है, इन परेशानियों को खत्म फरमा दे, सेहत शिफा अता फरमा दे, महंगाई को इस मुल्क की खत्म फरमा दे, रोजी की बेबरकती को खत्म फरमा दे, रिस्क के दहाने खोल दे, हाजिरीन की तमाम जायज हाजतें मुरादे पूरी फरमा। कल जो 7 मैयत हो गई एक दिन भर में, एक हाफिज कुरान हाफिज यूसुफ थे जो पिपलाना गांव में इमामत कराते थे। छोटे छोटे 3 यतीम बच्चे छोड़ गए, जिंदगी भर पढ़ा और मदरसे के अंदर रहा, बाहर की दुनिया देखी भी नहीं। कल यहाँ शिफा में दम तोड़ दिया। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हाफिज कुरान है जो इधर उधर गांवों में खिदमत करते रहे और पिपलाना में बरस तक कौद दे इमामत और मदरसे की खिदमत अंजाम दी। इसी तरह 4 माएं एक साथ चली गई जो बिदकते बच्चों को छोड़ गई। ऐ मेरे परवरदिगार, सबकी करवट करवट मगफिरत फरमा, सबकी कब्रों का नूर से भर दे, रूहों को इल्लीन में दाखिल फरमा, जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमा। तेरी धरती पर जितने हैं ऐ अल्लाह, ये सब तेरी धरती के अंदर सिमोने वाले हैं। हम सबको इज्जत की मौत देना, ईमान की मौत देना, हुस्न खातिमा अता फरमाना, बुरी अचानक की हादसात की गफलत की जहालत की मौत से बचाना। लंबी दुआ इसलिए की कि तेरे नबी ने फरमाया है, रमजान में मांगने वाला महरूम नहीं रहता है। दे देना मौला, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, अता तो कर दे मेरा रब, तू तो देकर खुश होता है, मखलूक तो खाकर खुश होती है, तू तो खिलाकर खुश होता है। अरे दे देना मेरा रब, तू कबूल तो कर लो,
अरे रूठ तो मत जा, अरे वापस तो मत फिर, अरे कब तक तू वापस करेगा, अरे तू तो रब्बे कायनात है, अरे तो तुझे वापस करते हुए शर्म लगती है। और बहुत शर्माने वाले अल्लाह, और बहुत शर्म हया पैदा करने के मालिक अल्लाह, आज तो वापस न कर, आइंदा जुमा मिले न मिले कोई ठिकाना थोड़ा है मेरा घर। रमजान में बहुत चले गए, आसमान कितने कितनी जमीन कितने आसमान खा गई, न मालूम हम रहे न रहे। ये दुआ तो कबूल कर ले, अरे वापस न फेर। अल्लाह एक बच्चा मार खाया हुआ बाहर के घर में आकर के अपने सारे मजालिम माँ बाप को बताता है, फलाने ने यहाँ मारा, इस तरह मारा, इस तरह मारा। ये जमाने की मार खाई हुई मखलूक है, सबसे महरूब, सबसे बेआसरा, सबसे बेसहारा तेरे दर पर आकर खड़ी है रब्बे करीम। उम्मत की डूबती नाव को बचा ले, तू भी बेसहारे का सहारा है, बेआसरे का आसरा है। देना मौला, मगफिरत की भीख दे दे, पूरी उम्मत पर नजर रहमत फरमा ले, तेरे गजब को खत्म फरमा दे। ऐ अल्लाह, मांगी हुई दुआएं नबी के सदके में, रोजेदारों के रोजे के सदके में, तेरे रूखे अनवर के सदके में, यकीन है तू चेहरा डाल करके सामने बैठा है और हमारी सुनता है। रब्बे करीम इस मुबारक साअत की लाज रख ले, रमजान के दूसरे जुमा की लाज रख ले, माफ फरमा दे, करम की चादर फेर दे, आजमाइश को खत्म फरमा दे। ऐ अल्लाह मुख्तसर कर दे, रब्बुल आलमीन अपनी खुसूसी मेहरबानी का मामला फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिहि व बारिक व सल्लिम बिरहमतिक।